टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसका नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, मतलब कंप्यूटर अरिथमेटिक। मतलब हम इसमें एल्गोरिथम्स पढ़ने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की और सब्ट्रैक्शन की, एडिशन की। ठीक, start with the introduction. Data is manipulated by using the arithmetic instructions in digital computers. डेटा को डिजिटल कंप्यूटर्स में कैसे मैनिपुलेट किया जाता है? इंस्ट्रक्शंस देके, ठीक है, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन देके। डेटा इज मैनिपुलेटेड टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स नेसेसरी टू गिव सॉल्यूशन फॉर द कंप्यूटेशन प्रॉब्लम्स। और डेटा को मैनिपुलेट करना क्यों जरूरी है? जिससे हम रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सके, जो जरूरी है किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए। द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर द 4 बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं? जो भी मैथ्स में अभी हम यूज करते हैं, जैसे आपका हो गया एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, राइट। द एडिशन, if we want, then we can derive other operations by using these 4 operations. हम चाहे तो दूसरा ऑपरेशन भी डिराइव कर सकते हैं इन्हीं चारों ऑपरेशंस को यूज करके। To execute arithmetic operation, there is a separate section called arithmetic processing unit in central processing unit. अगर हम arithmetic operations को execute करना चाहते हैं तो एक separate section आता है जिसे हम कहते हैं arithmetic processing unit, CPU में, central processing unit में। The arithmetic instructions are performed generally on binary और decimal data। जो arithmetic instructions होते हैं वो basically binary data पे होते हैं या decimal data पे। Fixed point numbers are used to represent integers of fractions। Fixed point numbers का यूज किया जाता है integers of fractions को represent करने के लिए। We can have signed और unsigned negative numbers। हमारे पास signed negative numbers भी हो सकते हैं और unsigned negative numbers भी हो सकते हैं। Fixed point addition is the simplest arithmetic operations। सबसे simplest arithmetic operation होता है fixed point addition। If we want to solve a problem, then we can use a sequence of well-defined steps। अगर हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो हम ऐसी सीक्वेंस, एक स्टेप्स का सीक्वेंस यूज कर सकते हैं। These steps are correct। उन स्टेप्स को हम बोलते हैं algorithm। To solve these problems, we give algorithm। अगर हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हम उसके लिए algorithm यूज करते हैं। In order to solve the computational problems, arithmetic instructions are used in digital computers that manipulate data। अगर हमें कोई भी computational problem सॉल्व करनी है तो उसके लिए arithmetic instructions दिए जाते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स में, जो डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। These instructions perform arithmetic calculations। ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करते हैं arithmetic calculations। And these instructions perform a great activity in processing data in a digital computer। यही इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छी तरह से एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं डेटा को प्रोसेस करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर में। As we already stated that with the 4 basic arithmetic operations, addition, subtraction, multiplication, division, it is possible to derive other arithmetic operations। जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि 4 बेसिक ऑपरेशन जो कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, इनकी मदद से अरिथमेटिक ऑपरेशंस डिराइव करना पॉसिबल है और साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना न्यूमेरिकल एनालिसिस मेथड से भी पॉसिबल है। A processor has an arithmetic processor that executes arithmetic operations। कोई प्रोसेसर के arithmetic प्रोसेसर होते हैं जो एग्जीक्यूट करते हैं arithmetic operations को। The data type assumed to reside in processor registers during the execution of arithmetic instructions। Negative numbers may be in sign magnitude or sign complement representation। अब सबसे पहले हम जानते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में। Addition or subtraction with sign magnitude data। We designate the magnitude of 2 numbers by A and B। हम 2 नंबर्स का मैग्नीट्यूड A और B से बताते हैं। Where the sign numbers are added or subtracted, we find that there are
the result should be +0 or -0. The algorithm for addition and subtraction are derived from the table and can be stated as follows. एडिशन और सब्ट्रैक्शन की एल्गोरिथम इस टेबल में दे रखी है और इसे हम डिराइव भी ऐसे कर सकते हैं। एडिशन हो गया a + b, इसमें a होगा ऑगेंट, b होगा एडेंड। अगर सब्ट्रैक्शन है a - b तो a होगा माइन्यूमेंट और b होगा सब्ट्रैंडेंट। अगर ऑपरेशन हम ये कर रहे हैं +a + b, ऐड मैग्नीट्यूड कर रहे हैं तो आएगा +a - b - b - a + a - b। अगर हम +a - b कर रहे हैं या -a + b कर रहे हैं या -a + -b कर रहे हैं, +a - + b कर रहे हैं, +a - b कर रहे हैं, इस सब केसेस कर रहे हैं तो हमारा ऐड मैग्नीट्यूड आएगा +ab - a + b। ठीक, अब इसका हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? पहला है हमारे पास b रजिस्टर, फिर है कॉम्प्लीमेंटर, फिर है पैरेलल एडर, फिर है a रजिस्टर। b रजिस्टर से कॉम्प्लीमेंटर में गए, कॉम्प्लीमेंटर से हम पैरेलल एडर में गए, पैरेलल एडर से हमें कैरी इनपुट मिला और मोड कंट्रोल मिला और पैरेलल एडर से ही कैरी आउटपुट बाहर गया। फिर एक a रजिस्टर है जिसमें हमने नोट्स डाला। अब साइन टूज कॉम्प्लीमेंट एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होता है? साइन टूज कॉम्प्लीमेंट एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होता है? हार्डवेयर में ये होता है कि b रजिस्टर होता है, उसके साथ होता है कॉम्प्लीमेंटर और पैरेलल एडर और फिर होता है AC। एल्गोरिथम इसकी कैसे होगी? सबको इसे सब्ट्रैक्ट करनी है तो माइन्यूमेंट होगा AC और सब्ट्रैक्ट होगा B में। AC में आएगा AC + B + 1, B में आएगा ओवरफ्लो और ऐड में आएगा ऑगेंट इन AC, एडेड में आएगा B। तो AC + B ओवरफ्लो ऐड। Algorithm. The flow chart is shown in figure. The two signs A and B are compared by an exclusive OR gate. जो A और B दो साइंस होते हैं इन्हें हम कंपेयर करेंगे एक्सक्लूसिव OR गेट की मदद से। If the output of the gate is 0, the signs are identical. अगर आउटपुट 0 है तो मतलब उनके साइंस सेम है, अगर आउटपुट 1 है तो उनके साइंस डिफरेंट है। For an add operation, identical signs indicate that the magnitudes be added. अगर add operation होता है तो हम आइडेंटिकल साइंस ये बताते हैं कि मैग्नीट्यूड्स ऐड करने के हैं। अगर सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन होता है डिफरेंट साइंस का मतलब कि मैग्नीट्यूड ऐड होंगे। मैग्नीट्यूड ऐड करते हैं माइक्रो ऑपरेशन EA के लिए। A + B वेयर E एक रजिस्टर है जहां E और A को कंबाइन किया गया है। जो कैरी है E में वो एडिशन के बाद कॉन्स्टिट्यूट करेगा ओवरफ्लो अगर उसकी वैल्यू 1 होगी। अगर E की वैल्यू ट्रांसफर कर दी जाए ऐड ओवरफ्लो फ्लिप फ्लॉप ABF में, द टू मैग्नीट्यूड आर सब्ट्रैक्टेड। दो मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे अगर उनका साइन डिफरेंट है ऐड ऑपरेशन के लिए या आइडेंटिकल है सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन के लिए। मैग्नीट्यूड से सब्ट्रैक्टेड बाय एडिंग a to the 2's complement b। मैग्नीट्यूड को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं a की वैल्यू ऐड करके 2's complement में b के। ओवरफ्लो नहीं हो सकता अगर नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया गया है, इसीलिए ABF को 0 से क्लियर कर दिया जाता है। जो E में 1 है वो इंडिकेट करता है कि A की वैल्यू B से बड़ी है और A में जो नंबर है वो करेक्ट रिजल्ट है। अगर ये नंबर 0 है तो साइन AB को भी पॉजिटिव करना पड़ेगा जिससे नेगेटिव 0 वैल्यू ना आ जाए। 0 जो E में है वो इंडिकेट करता है कि A की वैल्यू B से छोटी है। इस केस में अगर हम 2's complement लेंगे वैल्यू का A में तो जो ऑपरेशन है वो माइक्रो ऑपरेशन A बार + 1 कहलाएगा। However, we assume that the A register has circuits for micro operations, complement and increment, so the 2's complement is obtained from these two micro operations. हालांकि हम ये मान के चलते हैं कि A रजिस्टर के सर्किट्स होते हैं, इसीलिए माइक्रो ऑपरेशंस का कॉम्प्लीमेंट और इंक्रीमेंट होता है, इसलिए 2's complement ऑपरेट किया जाता है इन दो माइक्रो ऑपरेशंस का। In other parts of the flow chart, the sign of the result is same as the sign of A. फ्लो चार्ट के दूसरे पार्ट्स में देखा जाए तो A का साइन वही होता है जो साइन के रिजल्ट का होता है। सो नो चेंज इन A, इसीलिए A में कोई चेंजेस जरूरत नहीं होगी। However, when A is less than B, अगर A की वैल्यू B से कम है, जो साइन होगा रिजल्ट का वो कॉम्प्लीमेंट होगा ओरिजिनल साइन के A का। If it is then necessary to complement A to obtain the correct sign, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम A का कॉम्प्लीमेंट निकालें जिससे करेक्ट साइन ऑब्टेन हो। फाइनल रिजल्ट जो है वो रजिस्टर A में मिलेगा और उसका साइन A में। वैल्यू जो आएगी ABF में वो प्रोवाइड करेगी ओवरफ्लो इंडिकेशन। द फाइनल वैल्यू
फाइनल वैल्यू की थी वो ए मटेरियल की किस काम के लिए होगी। एक फिगर देखिए जो एक ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है हार्डवेयर का इम्प्लीमेंटिंग द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस की। इसमें है रजिस्टर ए और बी, साइन फ्लिप फ्लॉप में ए बी एस, सब्ट्रैक्शन किया गया है ए में 2's कॉम्प्लीमेंट बी डाल के। द आउटपुट कैरी इज ट्रांसफर्ड टू फ्लिप फ्लॉप ए, जो आउटपुट है वो फ्लिप फ्लॉप ए में ट्रांसफर कर दिया, जहां पर उसे हम वैल्यू के लिए चेक करेंगे। द एड ओवरफ्लो फ्लिप फ्लॉप एवीएफ, एड ओवरफ्लो फ्लिप फ्लॉप एवीएफ बोलते हैं हम, वो होल्ड करेगा ओवरफ्लो बिट जब ए और बी को ऐड किया गया है। ए रजिस्टर प्रोवाइड करेगा माइक्रो ऑपरेशन जिनकी जरूरत पड़ेगी जब हम सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हर एल्गोरिथम का स्पेसिफाई करेंगे। अब ये है वो फिगर, इसको तो आप देख सकते हैं, माइन्यूएंड है ए, सब्ट्रैक्टेंड है बी, ऑगेंड है ए, एडेड है बी। देख लीजिए सब्ट्रैक्ट में क्या क्या वैल्यूज होती है, माइन्यूएंड और सब्ट्रैक्टेंड, एडेड होती है ऑगेंड और एडेड। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका सिंबल होगा ये प्लस और अब इन अ सर्कल। सिमिलरली एड ऑपरेशन का भी सिंबल होगा ये। अब इन दोनों की वैल्यूज हम कंपेयर करेंगे, ये हमारा फ्लो चार्ट है। अब हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम। इन द बिगिनिंग द मल्टीप्लिकेंड इज इन बी एंड द मल्टीप्लायर इन क्यू। देखा जाए तो मल्टीप्लिकेंड बी में है और मल्टीप्लायर क्यू में है। इनकी करस्पॉन्डिंग साइन है बीएस और क्यूएस। हम उनकी साइंस को कंपेयर करेंगे ए और क्यू से और इन्हें करस्पॉन्डिंग साइन दे देंगे प्रोडक्ट का, क्योंकि एक डबल लेंथ प्रोडक्ट स्टोर किया जाएगा रजिस्टर ए में और रजिस्टर क्यू में। रजिस्टर ए और ई क्लियर है और सीक्वेंस काउंटर एससी को हमने सेट कर दिया है उतनी बिट्स पे जितने पे मल्टीप्लायर है, क्योंकि कोई ऑपरेंड स्टोर किया जाता है साइन पे, एक बिट ऑफ वर्ड ऑक्यूपाई की जाएगी साइन की और मैग्नीट्यूड में होगी n-1 बिट्स। नाउ द लोअर order of bit of the multiplier in Q1 is tested. If it is 1, the multiplicand b is added to. अब क्या करना है हमें, लो ऑर्डर बिट मल्टीप्लायर की टेस्ट करी जाएगी, जिसमें अगर इसकी वैल्यू 1 निकली तो मल्टीप्लिकेंड b को ऐड कर दिया जाएगा प्रेजेंट पार्शियल प्रोडक्ट a में। अगर 0 आई तो नहीं होगा। रजिस्टर e q को शिफ्ट किया जाएगा राइट से, जिससे एक नया पार्शियल प्रोडक्ट बने। जो सीक्वेंस काउंटर है उसे डिक्रीमेंट किया जाएगा 1 से और इसकी नई वैल्यू चेक की जाएगी। अगर उसकी वैल्यू 0 नहीं है तो प्रोसेस को रिपीट किया जाएगा और नई पार्शियल प्रोडक्ट बनाया जाएगा। जब SC 0 है सीक्वेंस काउंटर तो हम इस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। ये है इसकी वैल्यू, ये इसका फ्लो चार्ट है मल्टीप्लाई ऑपरेशन का। इसमें क्या क्या वैल्यूज आएगी, एक मल्टीप्लिकेंड b का और मल्टीप्लायर q का। a में आएगी q मल्टीप्लाई b, q में आएगी q मल्टीप्लाई b, a में आएगी 0, e में 0, SC में आएगी n-1। बूथ एल्गोरिथम पढ़ते हैं। बूथ एल्गोरिथम क्या होती है, बूथ एल्गोरिथम गिव्स ए प्रोसीजर फॉर मल्टीप्लाइंग बाइनरी डिजिट्स इन साइन टू दिस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। बूथ एल्गोरिथम लास्ट यूनिट में भी कवर की थी। ये करती है बाइनरी इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस साइन टू कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में। ये ऑपरेट करती है इस फैक्टर की जो स्ट्रिंग है 0 की, मल्टीप्लायर में उनको कोई एडिशन की जरूरत नहीं होती बट शिफ्टिंग की जरूरत होती है और एक स्ट्रिंग की जरूरत होती है वंस की मल्टीप्लायर में फ्रॉम बिटवीन 2k से बिटवीन 2m तक, जिसे हम ऐसे ट्रीट कर सकते हैं 2 की पावर k प्लस 1 माइनस 2 की पावर n। एग्जाम्पल, एक बाइनरी नंबर है ये 14 जिसका स्ट्रिंग वंस है 2 की पावर 3 टू 2 की पावर 1। जो नंबर है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा 2 की पावर k प्लस 1 से माइनस 2 की पावर n से, विच उसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 1। इसीलिए जो प्रोडक्ट ऑब्टेन किया जाएगा वो शिफ्टिंग की जाएगी मल्टीप्लिकेंड m में 4 बार लेफ्ट की तरफ और सब्ट्रैक्ट किया जाएगा m में m को शिफ्ट किया जाएगा लेफ्ट में वंस। हार्ड में क्या होता है, बूथ एल्गोरिथम का जो साइन बिट्स होती है वो सेपरेट नहीं की जाती बाकी के रजिस्टर से। रीनेम किया जाएगा रजिस्टर्स को a b और q, एक भी उसे हम ac b r q1 बोल देंगे। q1 है वो डेजिग्नेट करेगा b से, qn बताएगा सबसे छोटी सिग्निफिकेंट बिट कौन सी है और मल्टीप्लाई कौन सा है रजिस्टर qr में।